बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कथा क्लियर शोना जाच्छे? जी जी। ओके। सच्चा मोमिन वो है जो अकेला अल्लाह ही को माबूद माने, जबान से भी इकरार करे कि अल्लाह के सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं। कलिमा से मालूम होता है कि हम ये खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। আবার सच्चा मोमिन সত্যিকারের मोमिन व्यक्ति वो है ওই ব্যক্তি जो যিনি একিলা আল্লাহি को মাবুদ মানে, যে এক আল্লাহকে কি মাবুদ মানে, অর্থাৎ তিনি ইবাদতের যোগ্য। তিনি কি ইবাদতের যোগ্য। বাইকেটটা লাগাই দেন দুলা আসতেছে, ঠিক আছে। মাবুদ মানে মানে আল্লাহ। জবান সে ভি ইকরার করে, এবং জবান জবান মানে মুখ, যে জবান সে ভি ইকরার মানে হচ্ছে মানে আপনার কি বলে এটাকে স্বীকার করা। তো জবান সে ভি ইকরার করে এবং মুখ দিয়ে স্বীকার করে কে যে আল্লাহকে সেवा, আল্লাহ ব্যতীত, সেवा মানে ব্যতীত বা ছাড়া, अल्लाह के सिवा अल्लाह छाड़ा और कोई इबादत के लायक नहीं, যে আল্লাহ ছাড়া আর ইবাদতের উপযুক্ত কেউই নয়। কালিমা से मालूम होता है, যে কালিমা থেকে জানা যায় যে কে মানে যে हम ये खुदा আমরা एक अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, যে আমরা এক রসুল এবং এক খুদাকেই মানি। বুঝে আসছে কথাটা? ওস্তাদ জি, মাঝে একটু শোনা যায়নি, মাঝের দিকে একটু। सच्चा मोमिन ওটা মানে वो है जो अकेला अल्लाह ही को माबूद माने। जबान से भी इकरार करे कि अल्लाह के सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं। कलिमा से मालूम होता है कि हम एक खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। বুঝে আসছে? আচ্ছা, ওস্তাদ জি, ইকরার ইকরার বলতে কি এটা? স্বীকার, স্বীকার করা। ইকরার। হ্যাঁ, আচ্ছা স্বীকার করা। ওকে। আচ্ছা, তাহলে কারার কারার অর্থ কি? তাহলে কারার অর্থ কারার কারার ইকরার বেকারার। একই, বুঝতে পারছেন? কারার ইকরার এটি সেম, আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এখন আমাকে আপনারা আচ্ছা। একজন একজন করে তাহলে শোনান। বেকারার মানে কি? অস্বীকার। আচ্ছা হ্যাঁ। না, ওই বেকারার যেটা ওইখানে অস্থিরতা, অস্থির, ঠিক আছে। এইখানে উর্দুতে ইকরার মানে স্বীকার, আর ওইটা হচ্ছে ফার্সিতে কারার, বেকারার মানে ইকরার মানে অস্থির। স্বীকার। হ্যাঁ। ওকে, একজন একজন করে শোনান। একজন একজন করে শোনান। আপনারা কি আমার কথা শুনতেছেন না? হ্যালো, আপনারা কি আমার কথা বুঝতেছেন? কি ব্যাপার, কেউ কথা বলে না? बुरा किसका नेटवर्क के कारण है, बुरा किसी ना। तो मोमिन वो है जो एक ला अल्लाह একিলা, के अकेला अल्लाह के माबूद আল্লাহ माने, अल्लाह ही को माबूद माने, जबान से ही इकरार करेगा अल्लाह के सी और अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के से और कोई है, अल्लाह के सिवा, हाँ, अल्लाह के से और कोई ये कोई इबादत
कोई इबादत के लायक नहीं। लायक नहीं। हम्म, कलमे से मालूम कालिमा से कालिमा से मालूम होता है। কালিমা এক কি খুরা দে না কি লেখছে এটা খ দাল मालूम खुदा होता है कि हम ये खुदा होता है कि एक खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। मानते हैं। ওকে, আপনার মাইকটা মিউট করেন। अच्छा শফিকুল ইসলাম ভাই। सच्चा मोमिन वो है जो अकेला अल्लाह ही अल्लाह को माबूद माने, जबान से भी इकरार करे হ্যাঁ, करे करे কারে का কারে কারে পরেরটা কি কা না কো হবে উস্তাদি? পরেরটা কারে কারে পরেরটা তারপরেরটা কার হে, তারপর আল্লাহর আগে যে ক, এটা কি? কারে কে কে ও कारे के, अच्छा के अल्लाह के सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं। कालिमा से मालूम होता है कि हम एक खुदा और रासूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। আচ্ছা গালিব। আচ্ছা ওস্তাদি, এখানে আমার শেষ করার আগে ওই যে আপনি যেটা বললেন জি, এটা একটু ক্লিয়ার হওয়া প্রয়োজন। যেমন আপনি দ্বিতীয় লাইনে যদি বলেন ইকরার কার হে, তারপরে কি কে নাকি কা হবে? এটা ইকরার কারে কে 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 মানে যে, ইকরার ইকরার কার হে কে। না না কারে কে কারে, ইকরার কারে হ্যাঁ। কে। ও, আচ্ছা আচ্ছা, এখানে শেষে তো হ আছে মোটা করে, সেটা কি হ্যাঁ, এটা আ হয় না এখানে? কে কে কে। এটা কে হবে? হুম, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে। सच्चा मूमिन वो है जो अकेला अल्लाह ही को माबूद माने, जबान से भी इकरार करे कि अल्लाह की सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं। कलमा से मालूम कालिमा होता है कि कालिमा से की कालिमा से कलिमा से मालूम होता है कि हम एक खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। मानते। ओके, क्लियर। अच्छा, पहला कलिमा तय्यिबा, पहला कलिमा तय्यिबा, ঠিক আছে, যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। कलिमा का माना ये है हम अल्लाह के सिवा किसी को खुदा न जाने, फरिश्ता हो या वली, वो भी हमारी तरह अल्लाह के मखलूक और बंदे हैं। अल्लाह की मखलूक की ज़िंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह ही के हुक्म से होती है। अल्लाह तमाम मखलूक को रोज़ी देता है, अल्लाह बीमारी देता है, अल्लाह शिफा देता है, अल्लाह सारे जहान का मालिक है। अल्लाह का ना बाप है ना बेटा है, सब उसी के और सिर्फ उसी के मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह सब की मदद करता है, सबके साथ है और सब की खबर रखता है। वही अकेला माबूद है। जो अल्लाह को माबूद न माने वो काफिर है, मरने के बाद दोज़ख में जाएगा। तो बोलते से पहला कलिमा तय्यिबा, प्रथम হচ্ছে কি कलिमा तय्यिबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বলতেছে যে তর্জমা, তর্জমা মানে হচ্ছে অনুবাদ, যে আল্লাহ के सिवा, अल्लाह ছাড়া कोई इबादत के लायक नहीं, केवी इबादतेर उपयुक्त
নয়। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल है, আল্লাহ তাআলার রসুল কি, আল্লাহ তাআলার রসুল। ঠিক আছে, এরপর বলতেছে, এখন বলতেছে যে কালিমা কা মানা, এই কালিমার অর্থটা ইয়ে হে হচ্ছে এটাই, হাম আল্লাহ কে সেও, যে আমরা আল্লাহ ছাড়া কিসি কে খোদা না জানে, কাউকে আমরা খোদা হিসাবে জানি না। ঠিক আছে, যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে আমরা কি করি না, খোদা হিসাবে জানি না। ফেরেশতা হো ইয়া ওলি, হোক সে ফেরেশতা অথবা ওলি, বলতেছে वो भी हमारे তারা, এই যে তারা, ফেরেশতা, ওলি, যা কিছু আছে এই সৃষ্টি জগতে, মহাজগতে সব কিছুই হামারি তারা, আমাদের মতই। হামারি তারা মানে আমাদের মতই। আল্লাহ কে মখলুক, আল্লাহ তাআলার কি সৃষ্টি, और बंदे है এবং বান্দা। বুঝে আসছে? ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? জি শফিক ভাই? জি ওস্তাদ জি, ক্লিয়ার। ওকে, তাহলে আমাকে একটু শোনান, আপনারা পড়ে শোনান। শফিক ভাই পড়েন। ওস্তাদ জি একটু তো স্ক্রিন থেকে তো হারিয়ে গেল, আপনার দেখা যাচ্ছে না লেখাগুলো। কি গাড়ি দেখতেছেন? না উস্তাদ। কি বলেন? ও সরি, স্ক্রিনে অফ হয়ে গেছে। ওকে, আসছে? হ্যাঁ এখন এসেছে। পেহলা কালিমায়ে তৈয়বা, এখানে যেটা আল্লাহকে सेवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कलिमा का माने है ये, माना ये है, और माना ये है हम अल्लाह के सिवा किसी को खुदा ना जाने, हाँ। फिरिश्ता और फरिश्ता हो या वली, फरिश्ता हो या ओली, वो भी हमारे तरह अल्लाह के हमारी तरह अल्लाह के मखलूक और बांदे हैं। अल्लाह के मखलूक के जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह ही के না এটা পরে যান, আমরা এই পর্যন্ত পড়ছিলাম, এটা কি নিয়ে अच्छा তারপরে সৌরভ মির। সৌরভ মির জি শুনতেছি বলেন। पहला कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह तय्यब ना तय्यबा, तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा अल्लाह की सिवा एक इबादत, सेवा अल्लाह की सिवा इबादत, अल्लाह के सिवा कोई ये इबादत के ला তারপরে লায়েক नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल माने रसूल है। कालिमा का माना ये है हम अल्लाह के सिवा कोई को खुदा नहीं जाने, फरिश्ता है किसी को खुदा न जाने, फरिश्ता है ये, फरिश्ता हो या वली, फरिश्ता हो या वली। বলেন তারপরে এটা কি ওই যে বেহে নাকি
वो भी भी हमारे हमारी तरह मखलूक और बंदे हैं बंदे है। हाँ क्या पढ़े गालिब पहला कलिमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तर्जुमा अल्लाह की सवा कोई গালিব বলেন अल्लाह के सवा সৌরভীর মাইকটা মিউট করেন হ্যাঁ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। कलिमा का माना ये है हम अल्लाह के सिवा किसी को खुदा ना जाने, फरिश्ता हो या वली, वो भी हमारे तरह अल्लाह के मखलूक और बंदे हैं। ओके এরপর বলতেছে अल्लाह की मखलूक की जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह ही के हुक्म से होती है। अल्लाह की मखलूक की जिंदगी যে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির জীবন और मौत অর্থাৎ জীবন এবং মৃত্যু আল্লাহর সৃষ্টির অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাদের জীবন এবং মौत सिर्फ শুধুমাত্র আল্লাহ ही के हुक्म से होती है যে শুধুমাত্র আল্লাহর হুকুম থেকেই কি হয় অর্থাৎ কে কখন মারা যাবে কার হায়াত কতটুকু আল্লাহ तमाम मखलूक को रोजी देता है আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টিকে রুজি देता है কি দেয় খাবার দেয় কি দেয় খাবার দেয় আল্লাহ बीमारी देता है আল্লাহ কি অসুস্থতা দেয় আল্লাহ শেফা देता है আল্লাহ আরোগ্য দান করেন अल्लाह सारे जहान का मालिक है अल्लाह पूरा जहानेर पूरा पृथ्वीर मालिक अल्लाह का ना बाप है अल्लाह कोनो बाबा नहीं ना बेटा है कोनो सन्तान नहीं सब उसी के और सिर्फ उसी के मोहताज है जे पृथ्वीते सृष्टिगत जा किछु आछे सबकिछु तार मुखापेक्षी मोहताज माने कि मुखापेक्षी वो किसी का मोहताज नहीं है अल्लाह ताला कारो मुखापेक्षी नय अल्लाह सबकी मदद करता है अल्लाह सबाइके साहाज्य करें सबके साथ है अल्लाह सबार साथे आछेन और सबकी खबर रखता है एवं सब किछुर खबरई अल्लाह राखें वही अकेला माबूद है तिनी एकमात्र माबूद जो अल्लाह को माबूद ना माने जे व्यक्ति बा जारा अल्लाह के माबूद माने ना वो काफिर है से कि काफिर मरने के बाद ওই সমস্ত কাফেররা দোজখ में जाएगा দোজখে যাবে ওকে তাহলে এখানটা পড়েন প্রথমে গালিব পড়েন রিডিং अस्सलाम वालेकुम। पढ़ें अल्लाह के मखलूक की जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह ही के हुक्म से होती है अल्लाह तमाम मखलूक को रोजी देता है अल्लाह बीमारी देता है अल्लाह शिफा देता है अल्लाह सारे जहां का मालिक है अल्लाह का ना बाप है ना बेटा है सब उसी की और सिर्फ उसी की मोहताज है वो किसी का मोहताज नहीं है अल्लाह सबके मदद करता है सबके साथ है और सबके खबर रखता है वही अकेला माबूद है जो अल्लाह को माबूद ना माने वो काफिर है मरने के बाद दोजख में जाएगा ओके তারপর হচ্ছে আমাদের শফিকুল ইসলাম ভাই শফিকুল ইসলাম ভাই জি ওস্তাদ জি পড়েন
अल्लाह के मखलूक की जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह ही के हुक्म से होती है। হ্যাঁ अल्लाह तमाम मखलूक को रुजी देता है। হ্যাঁ अल्लाह अल्लाह की আল্লাহ बीमारी बीमारी देता है। देता है, अल्लाह शिफा देता है। अल्लाह सारे जहान का হ্যাঁ मालिक है। হুম अल्लाह अल्लाह का ना बाप है, ना ना बेटा है, ना बेटा है। सब इसी के उसी के उसी के और सिर्फ उसी के मोहताज है। मुहताज है। वो किसी का मुहताज नहीं है। अल्लाह मोहताज का मतलब क्या है? मोहताज माने কি? মুখাপেক্ষী। मुखापेक्षी। মুখাপেক্ষী। हाँ, তারপর मुहताज नहीं है। अल्लाह सबकी मदद करता है। कोर्ता क्या है? सब करता करता। मदद करता है, सबके साथ है और सबके खबर रखता है। वही अकेला अकेला माबूद है। जो अल्लाह को माबूद ना माने वो काफिर है। मरने के मरने बाद मरने के मरने के बाद बाद हाँ, मरने के बाद दोजख में जाएगा। ওকে তারপর আমাদের এই সৌরভ মির উপরে अल्लाह के मखलूक के जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह है का हुक्म से होता है। अल्लाह तमाम मखलूक के और মাখলুক को रोजी देता है। अल्लाह बीमार देता है, अल्लाह शिफा देता है। अल्लाह सारे जहान का मालिक है। अल्लाह का नहीं बाप बाप না বাপ है না बेटा है। अल्लाह का नहीं बाप है बेटा। सब उसे परे सब उसे के सब उसी के और सिर्फ उसी के मोहताज है। सब उसी के और सिर्फ उसी के मोहताज है। वह कुछ के मोहताज नहीं है। अल्लाह के मदद करते हैं, सबको साथ है और के खबर रखता है। वो इकला माबूद है। जो अल्लाह के माबूद नहीं माने वो काफिर একটু পড়ে নেন। मरने के बाद दोजख नहीं देगा नाकि दोजख में जाएगा। दोजख में जाएगा। ওকে আপনার এখানে আজকে অনেক আওয়াজ আসছে। বন্ধ করেন আওয়াজটা। ওকে ওকে এখানে একটা টেক্সট দেখেন। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े आलिम और बुजुर्ग थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिलान के रहने वाले थे। जिलान के रहने वाले थे। ঠিক আছে। এরপরে হচ্ছে
उनको इल्म हासिल करने का बहुत शौक था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह बगदाद गए इस शौक को पूरा करने के लिए। जाते वक्त शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह की वालिदा ने আসসালামু আলাইকুম। সালাম। শেখ, আমি অতদিন পর ক্লাসে আসছি। ফার্সি ক্লাস চলতেছে? ফার্সি উর্দু তো কন্টিনিউ চলতেছে। এখন আমার সময় প্রথম ক্লাস হয়। আমি আপনাদের ভিডিওগুলো দেখে মাঝে মাঝে একটু কাজকর্মের জন্য ব্যস্ততার জন্য আমি আপনাদের ভিডিওগুলো দেখতে পারি না। ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে সবগুলো দেখবো। এখন তো অনেক ঝামেলা হয়ে গেছে। বুঝতে পারছি। আচ্ছা, আমি একটু দেখে আমি ঘুরে। আচ্ছা ঠিক আছে। তো पूरा আজকে কি ফার্সি ক্লাস নাকি? জি আজকে কি ফার্সি ক্লাস? বুঝে নাই। আজকে কি ফার্সি ক্লাস? মানে আজকে কি প্রথম ক্লাস থেকে আপনি জিজ্ঞেস করতেছেন? না না না, এরপর বলতেছে যে जाते वक्त शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिदा ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के कुर्ते में 40 दीनार सी दिए और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को ये नसीहत की, याद रखो कि हमेशा सच बोलना। सफर में डाकू ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पर हमला किया। एक डाकू ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? शेख अब्दुल कादिर ने कहा 40 दिनार। डाकू ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के कुर्ते से सचमुच 40 दिनार निकल पड़े। डाकू के सरदार ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी से सवाल किया, तुमने सच सच क्यों बताया कि आप रहमतुल्लाह अलैह के पास 40 दिनार थे? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, अम्मी ने मुझसे सच बोलने का वादा लिया था, इसलिए मैं कभी झूठ नहीं बोलता। डाकू के सरदार पर उस बात का बड़ा असर हुआ। डाकू ने तौबा कर ली और सब की तमाम चीजें वापस कर दी। ओके, কে কি রিডিং পড়তে পারবেন? গালিব বুঝতে পারবো। পড়ে শোনান। জি উপর থেকে একটু। এই তো এখান থেকেই তো। जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े आलिम और बुजुर्ग थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिलान की रहने वाले थे। उनको इल्म हासिल करने का बहुत शौक था। शौक शेख अब्दुल शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद गए इस शौक 70 पर शौक को पूरा करने के लिए। जाते वक्त शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की कुर्ते में 40 दिनार से दी और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को ये नसीहत की, याद रखो कि हमेशा सच बोलना। सफर में डाकुओं
ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पर हमला किया। एक डाकू ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहा 40 दिनार। डाकू ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सच्चाई किया सच्चाई सच्चाई पर ताज्जुब किया। यूं के शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की कुर्ते से सचमुच 40 दिनार निकल पड़े। पढ़े। डाकुओं की सरदार ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी डाकू की ना, डाकू के सरदार ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया, तुमने सच सच क्यों बताया कि आप रहमतुल्लाह अलैह के पास 40 दिनार थे? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, उम्मी ने मुझसे अम्मी ने मुझसे सच बोलने का वादा लिया था, इसीलिए मैं कभी झूठ नहीं बोलता। डाकू के सरदार पर इस बात का बड़ा असर हुआ। डाकुओं ने तौबा कर ले और सबकी तमाम चीजें वापस कर दे। ওকে, তারপরে কি আমাদের আবু তাহের ভাই পড়তে পারবেন? আবু তাহের, ওকে, আমাদের শফিকুল ইসলাম ভাই পড়েন। শফিকুল ইসলাম ভাই, জি ওস্তাদ জি পড়ছি। পড়েন। শেখ আব্দুল কাদের জিলানী रहमतुल्लाह अलैहि एक बड़े आलिम और बड़े आलिम और बुजुर्ग थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि जिलानी के रहने वाले हैं। जिलान के रहने वाले थे। उनको इल्म हासिल करने का बहुत शौक था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि बागदाद गए। उस शौक, একটু নিচে যেতে হবে উস্তাদ জি, একটু নিচে দেখা যাচ্ছে না। उस शौक को पूरा करने के लाए जाते वक्त शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के वालिद ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के कुर्ते में 40 दिनार से दाए और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि को ये नसीहत की याद रखो के जी, তারপর হলো हमेशा साज बोलना। सच बोलना। सफर में डाकू ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि पर हमला किया। ओके, बस আপনি এখানে থাকেন। সৌরভ মির বলেন, एक डाकू ने, ठीक है, এখান থেকে डाकू ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से
पाओ चिहा पूछा पहुंचा तुम्हारे पास क्या है। हाँ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी 40 दिनार दा सरदार ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि का 40 दिनार ये कोई কইতেছে निचले लाइन कादिर जिलानी का सच्चे पार ताजुब गया सच्चाई सच्चाई पार ताजब किया नाकि ताज्जुब किया जे कुसके शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि का कुर्ती से अलैहि के कुर्ती कुर्ते से साथ मुझ जा 40 दिनार তারপরে কি লিখছে 40 দিনার निकल डाकू का के सरदार ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि से सवाल किया तुमने साथ साथ क्या तुम साथ क्यों बोलते का आप बताया के आप रहमतुल्लाह अलैहि के पास 40 दिनार था। शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैहि ने जवाब दिया अम्मी ने अम्मी ने साथ भी बोलने का नाकि साथ बोलने का वादा लिया था। हाँ लिया তারপরে এটা কি ওকে ঠিক আছে